Good morning, students. In today's English class, we are going to start a new grammar topic, and the chapter name is the pronoun and kinds of pronouns. So, basically, we'll be discussing what is a pronoun and we'll be discussing all the kinds of pronouns. Let us start with the definition of pronoun. If you read this word pronoun, the answer hides in this only pronoun. मतलब आप जब भी ये वर्ड पढ़ेंगे आपको वर्ड को पढ़ते ही समझ आ जाएगा, याद आ जाएगा प्रोनाउन, राइट? सो ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन. सो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, स्वीटी इज माई सिस्टर. यहाँ पे स्वीटी जो है वो नाउन है, मेरी सिस्टर का नेम है, एक स्पेशल नेम है, सो दैट इज अ नाउन हियर. इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन शी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास एंड शी इज ऑल्सो अ गुड एक्टर. नाउ इन दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने स्वीटी की जगह, उसके नेम की जगह, इस नेमिंग वर्ड की जगह शी वर्ड को यूज कर लिया है. सो हेयर शी इज अ प्रोनाउन. दैट मीन्स शी वर्ड जो है वो नाउन की जगह यूज हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे. ओके, so we'll be discussing all these types of pronouns here. Personal pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, and relative pronoun. This relative pronoun actually is a separate chapter in your book, so we'll not be discussing this today only. We'll discuss it on the next in the next class. Now let us start with the personal pronoun. So personal means जो किसी person के लिए use किए जाते हैं. So as you all know that we have three kinds of persons. You must be remembering. You must remember कि आपने second में भी किया था, third में भी किया था. Three kinds of persons: first person, second person, and third person. Now first person होता है speaker, right? The second person जो हमारी बात सुन रहा है, speaker की बात सुन रहा है, that is the second person or the listener. एंड थर्ड पर्सन हम किसके लिए यूज करते हैं? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन, लाइक आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, सो मैं अपने लिए क्या प्रोनाउन यूज कर रही हूँ? आई. इफ मेरे साथ कोई और भी होगा, प्लूरल होंगे, तो हम यूज करेंगे वी. सो ठीक है, आई एंड वी, मी, अस, दीज आर द personal pronouns which are used for the first person. And for the second person, like you people are listening to me, आप सारे सुन रहे हैं, so आपके लिए जो pronoun use हो रहा है वो है you. You is used both for singular as well as plural. Third person, like if we are talking about Rahul, तो हम उसकी जगह, राहुल की जगह he word use कर सकते हैं. So he, she, they, it, him. So these are all the personal pronouns which are used for the third person. Now the next is a possessive pronoun. Possessive pronoun is a pronoun that shows the possession of something. Now you must be clear by now. आपको अच्छे से possession word का मतलब समझ आ गया है. So ऐसा pronoun जो किसी चीज़ की possession दिखाता है उसे हम possessive pronoun कहते हैं. So possessive pronouns में कौन कौन से words आते हैं? You can see here in the yellow box: mine, ours, yours, his, hers, theirs. ये सारे words हमारे possessive pronouns हैं, right? Now let us take some examples here. Let us see the first sentence. The first sentence is, this pen is mine. So ये pen किसका है? मेरा है. Mine word here is a pronoun which is showing the possession. ठीक है, जो possession बता रहा है पेन किसका है उसका आंसर दे रहा है, पेन मेरा है. So mine here is a personal pronoun. Now if you see pronouns जो होते हैं, possessive pronouns जो होते हैं, उनके end में, उनके पीछे कभी भी कोई noun नहीं आता है. Now let us see the next sentence. This is my pen. Now यहाँ पे my word भी हमें possession बता रहा है, pen मेरा है, लेकिन my word के पीछे क्या आ रहा है? It is being followed by a noun, and therefore what is it? It my here is an adjective, possessive adjective है. So this thing I have cleared you while we were doing the possessive adjectives. तब आपको ये बात बताई गई थी that possessive adjectives जो होते हैं they are always followed by a noun, लेकिन possessive pronouns के बाद में कोई noun नहीं आता है, right? Next one is, that doll is his. वो doll उसकी है, उस boy की है. So his word जो है again वो possession दिखा रहा है, बता रहा है किसकी है doll? उस boy की है, his. So his word here is a possessive pronoun. ठीक है? Now but it is not being followed by any noun here. इसके पीछे कोई noun नहीं आ रहा है. So his here is a possessive pronoun. Now next sentence, that is his doll.
वो डॉल उस बॉय की है, हिज। अगेन हिज वर्ड पोजेशन बता रहा है, बट इफ यू सी हिज वर्ड के पीछे नाउन आ रहा है, देयरफॉर इस सेंटेंस में हिज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया है। नेक्स्ट इज दोज बुक्स आर देयर्स, वो बुक्स उनकी हैं, देयर्स मीन्स उन सबकी हैं, राइट। नाउ देयर्स हियर इज अ पोजेसिव प्रोनाउन एंड इट इज अगेन नॉट बीइंग फॉलोड बाय एनी नाउन, इसके पीछे कोई नाउन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज दोज आर देयर बुक्स, अगेन देयर वर्ड यहाँ पे भी पोजेशन बता रहा है कि वो बुक्स किसकी हैं, उनकी हैं, लेकिन यहाँ देयर वर्ड के पीछे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, एंड देयरफॉर देयर वर्ड हियर इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे वो एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। सो अगेन लेट अस रिकॉल ऑल द वर्ड्स, जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। Alright, I hope this is clear to you now. Next is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun again मैंने आपको पहले भी बताया था, demonstrative words याद रखने हैं। हमने 5 words कौन से याद रखे थे, this, that, these, those, such. So इस तरह के अगर कोई words आते हैं so उन्हें हम demonstrative words कहते हैं। And I told you earlier also कि ये demonstrative words demonstrative pronoun भी बन सकते हैं और demonstrative adjective भी बन सकते हैं। Now let us see what is a demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are used to point out the things. किसी चीज की तरफ point out करने के लिए हम use करते हैं। Now let us see the examples, then it would be more clear to you. This is my pen. Now this word जो है इस sentence में वो demonstrative word है, word तो है वो demonstrative, but इसके पीछे क्या आ रहा है, is word आ रहा है, and is जो है वो verb है, noun नहीं है, so यहाँ पे this क्या हो जाएगा, demonstrative pronoun. Now let us see the words that are written in the red color. That pen is costly. That यहाँ पे demonstrative word है और उसके बाद क्या आ रहा है, pen आ रहा है, pen is a noun. इसका मतलब that word demonstrative pronoun नहीं है, वो demonstrative adjective है। Next sentence, that is your house. Now here that is a demonstrative word और उसके बाद verb आ रहा है, noun नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पे that क्या बन जाएगा, demonstrative pronoun बन जाएगा। But if we look at the words written in the red color, that house is that house is old. So that के बाद house आ रहा है, house is a noun, इसीलिए that जो demonstrative word है वो क्या बन गया, demonstrative यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया है क्योंकि उसके पीछे नाउन आ रहा है। These are our dresses. These word again demonstrative word है, उसके बाद are word आ रहा है, are is a verb, ठीक है। So here it would be demonstrative pronoun. Now let us see in the red color. These birds are lovely. These word demonstrative word है और उसके पीछे क्या आ रहा है, birds आ रहा है, right? So birds noun है, इसीलिए यहाँ पे these क्या हो जाएगा, demonstrative adjective है। Those are your shoes. Those word again is a demonstrative word, पर इसके बाद verb आ रहा है, are. So it will become demonstrative pronoun. Now those shoes are new. Those के बाद shoes आ रहा है, shoes is a noun. So here those word will become demonstrative adjective. So I hope this is again clear because we have covered this thing in demonstrative adjectives also. Now let us move further. Now we'll talk about the interrogative pronouns. Interrogative means जहाँ पे questioning की जा रही है. So an interrogative pronoun is used to ask questions. Now what are the words that are included in interrogative pronoun? What, which, who, whom, whose. Now these are all the interrogative words. Interrogative words means जो कोई question पूछने के लिए use हो रहे हैं। Now these are question words और इनके बाद क्या आना चाहिए, इनके बाद verb आना चाहिए, तभी ये interrogative pronoun बनेंगे। अगर इनके पीछे verb की जगह noun आएगा तो interrogative adjectives बन जाते हैं। So let us see the first example. What is the latest news? What here is an interrogative word और उसके बाद is आ रहा है, is a verb. So ये बन गया हमारा interrogative pronoun. Whose is this bag? So whose word के बाद is आ रहा है, is again is a verb. So whose यहाँ पे interrogative pronoun बन गया। Third, which of these dresses is yours? Which of these dresses is yours? So यहाँ पे भी ये question put कर रहा है, it is again interrogative pronoun. Next, whom have they appointed the captain? Whom
क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हैव आ रहा है विच इज द वर्ब, सो अगेन इट विल बिकम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद में वर्ब आता है, वेयर एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद में हमेशा नाउन आता है. Now let us cover a new kind of pronoun that is very new to all of you. This is reflexive pronoun. Reflexive pronoun में कौन कौन से words आते हैं? Reflexive pronouns में words आते हैं myself, ourselves, yourself, himself, herself, itself and themselves. So ये सारे words हमेशा reflexive pronoun में आते हैं. Now रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट आंसर्स द क्वेश्चन इन व्हाट और हु. याद है ना आपको? यू हैव डन दिस इन द काइंड्स ऑफ वर्ब्स. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा सेंटेंस में कहाँ आता है? वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है. मीन्स दैट इज द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है उस सेंटेंस में. You will be clear when we'll see the examples. Let us see the first one. He punished himself. So he punished whom? Whom का आंसर दे रहा है himself. ठीक है. So यहाँ पे himself word जो है वो object की जगह पे आ रहा है. Therefore it is reflexive pronoun. Next, सीमा hit herself. सीमा ने hit किया. किसको किया? Whom? herself. खुद को ही किया उसने hit. So यहाँ पे again से herself जो है वो किसकी जगह पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा. नेक्स्ट इज वी ब्लेम्ड अवरसेल्व्स फॉर द प्रॉब्लम. हमने ब्लेम किया. किसको ब्लेम किया? हुम का आंसर दे रहा है अवरसेल्व्स. इसका मतलब अवरसेल्व्स जो है वो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? अवरसेल्व्स विल बिकम द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ लुक एट दिस. शी हर्ट हरसेल्फ. शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हर्ट यहाँ पे हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है? हरसेल्फ. ठीक है. सो यहाँ हरसेल्फ जो हमारा वर्ड है वो किसकी जगह पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. We blamed ourselves for the problem. We here is the subject, blamed here is the verb. और किसको blame किया? ourselves. So ourselves again object की जगह पे आ रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे reflexive pronoun बन गया. Now one thing more that you have to take care of is कि reflexive pronoun जो है वो हमेशा verb के immediately बाद आता है. If you notice in all these sentences, punished is the verb, उसके immediately बाद himself आया. Hit here is this, in the second sentence hit is the verb, उसके immediately बाद herself आया. Third sentence में blamed is the verb, उसके immediately बाद ourselves आया, which is showing that this is a reflexive pronoun, right? So reflexive pronouns जो होते हैं वो object की तरह act करते हैं एक sentence में और वो हमेशा verb के immediately बाद आते हैं, right? Okay, so let us start with the next one. Next one says, next one is emphasizing pronoun. Now, emphasizing जो word है वो emphasize से बना है. Emphasize करना मतलब जो हम किसी चीज़ पे बहुत stress करते हैं, बहुत जोर दे के बोलते हैं, तो वो तो emphasize कर रहे हैं हम उसको. So emphasizing pronoun भी अपने नाम की तरह ही क्या करते हैं? किसी बात पे stress देते हैं, जोर डालते हैं कि ऐसा ही था. Emphasizing pronouns are used with a noun or a pronoun to put stress. उस चीज़ पे emphasize करने के लिए, उस चीज़ पे ज़्यादा stress देने के लिए, जोर डालने के लिए हम यूज़ करते हैं. Now let us see the example. She herself bought the clothes. So वो खुद कपड़े खरीद के लाई. So यहाँ पे वो कपड़े खरीद के लाई, वो खुद कपड़े खरीद के लाई. So यहाँ पे herself word जो है वो क्या है? Emphasizing pronoun है, right? और वो किस लिए यूज हो रहा है? उस बात पे जोर डालने के लिए कि वो खुद ही कपड़े खरीद के लाई है. तो हम इस चीज पे कि उसने खुद ये काम किया है उस चीज को एम्फसाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एन एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. नाउ एम्फसाइजिंग प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनके वर्ड्स दोनों सेम रहते हैं. मीन्स उनके जितने भी वर्ड्स हैं सब सेम हैं. डिफरेंस होता है उनके यूज में और उनकी पोजिशनिंग पे, राइट? सो नेक्स्ट इज मोहित हिमसेल्फ लॉक द रूम. मोहित ने खुद रूम लॉक कर दिया. सो मोहित ने रूम लॉक कर दिया, मोहित ने खुद रूम लॉक कर दिया. यहाँ जो हिमसेल्फ वर्ड है वो हमने किस लिए यूज किया? वो हमने अपनी बात पे जोर डालने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए यूज किया है, इसीलिए हिमसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया? एम्फसाइजिंग प्रोनाउन.
नेक्स्ट इज दे देमसेल्व्स वॉश्ड द रूम। अगर मैं इसको बोलूँ दे वॉश द रूम, उन्होंने रूम वॉश किया, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ दे देमसेल्व्स वॉश द रूम, उन्होंने खुद रूम वॉश किया। तो यहाँ पे अगेन उनके रूम वॉश करने वाली जो एक्टिविटी है उसको हम स्ट्रेस करने के लिए उन्होंने किया, उस बात पे जोर डालने के लिए हम themselves वर्ड यूज कर रहे हैं, एंड देयरफॉर इट इज अ emphasizing pronoun. Now look here, she herself hit the dog. यहाँ पे she is the subject और object क्या है, dog है। यहाँ पे herself जो है वो object नहीं है, वो सिर्फ हमारा सेंटेंस में स्ट्रेस देने के लिए, जोर डालने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज हो रहा है। We ourselves blamed them, यहाँ we सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है them। ठीक है, हमने किसको ब्लेम किया, them। सो ऑब्जेक्ट हमारा कोई और है। यहाँ ourselves जो वर्ड है वो हम सिर्फ किस लिए यूज कर रहे हैं, अपनी बात पे जोर डालने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ourselves क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट, द मैन हिमसेल्फ किल्ड द स्नेक। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मैन और उसने किसको मारा, हुम, द स्नेक। स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है। सो हिमसेल्फ वर्ड यहाँ पे सिर्फ हम अपनी बात पे स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए हिमसेल्फ वर्ड यहाँ पे क्या है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फसाइजिंग एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस के वर्ड्स सारे सेम होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन अलग होती है, उनका एक्शन अलग होता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे एम्फसाइजिंग वर्ड्स जो है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस जो हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं। वो उनका यूज़ क्या है, उनका यूज़ सिर्फ ये है कि हमने अपने सेंटेंस में स्ट्रेस देना है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इज कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया है, दे आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, वो वर्ब के बिल्कुल बाद लगाते हैं, लेकिन एम्फसाइजिंग जो प्रोनाउंस हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद आते हैं। एज यू कैन सी शी हरसेल्फ, सो सब्जेक्ट के बाद आया हरसेल्फ, राइट। वी अवरसेल्व्स, सो अवरसेल्व्स अगेन सब्जेक्ट के बाद आया है। द मैन हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ वर्ड अगेन किसके बाद आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो वर्ब के इमीडिएटली बाद आते हैं, जबकि जो एम्फसाइजिंग है वो सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद आते हैं। Now, at the end, I'd like to discuss with this chart with all of you. If you want, you can make this chart in your notebook. That will be very helpful for you. Now, इसमें आपको सारे pronouns दिए गए हैं, ठीक है। सो अगर हमारा सब्जेक्ट I है तो उसका ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन यूज होता है मी, उसका पोजेसिव बन जाता है माइन, और रिफ्लेक्सिव एम्फसाइजिंग बनते हैं माई सेल्फ। इसी तरह वी अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं तो वी की जगह अस हो जाता है, पोजेसिव के लिए अवर्स हो जाता है, एंड रिफ्लेक्सिव एम्फसाइजिंग के लिए अवर सेल्स हो जाता है। सो दीज आर ऑल द प्रोनाउंस, ठीक है। ये सारे प्रोनाउंस हैं जो अलग अलग पर्सन्स के लिए हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए कौन कौन से प्रोनाउन होंगे, आई और वी, ठीक है। आई, वी, मी, अस, माइन, अवर्स, माई सेल्फ, अवर सेल्स, ये सारे फर्स्ट पर्सन के लिए हैं। फॉर सेकेंड पर्सन द प्रोनाउंस दैट वी हैव इज यू, ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्स। अगर एक सिंगल है तो योर सेल्फ, अगर बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं तो योर सेल्स, राइट। फॉर थर्ड पर्सन हम कौन कौन से यूज करते हैं, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दिस इज फॉर अ सिंगल बॉय। शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, अगेन दिस इज फॉर अ गर्ल। दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, दिस इज यूज्ड जब थर्ड पर्सन हमारा प्लूरल होता है। एंड लास्ट इट, इट एंड there's no possessive for it, it and itself. So it is used for third person singular non-living thing, bird, animal, इनके लिए हम it word use करते हैं। So I hope this is clear. We'll be discussing the same chapter in our virtual classes also, and I'm sure after that you will be clear with the topic. Thank you and have a great day.